رحیم یار خان کی ایک خاتون سے اس کا شوہر صرف اس لیے نفرت کرتا تھا کہ اس کے ہاں بیٹا پیدا نہیں ہو رہا تھا۔ 4 بیٹیوں کی پیدائش کے بعد تو شوہر اپنی بیوی سے بالکل لا تعلق ہو کر رہ گیا تھا۔ اس کہانی میں آگے چل کر کچھ ایسا ہے جسے آپ کبھی فراموش نہیں کر سکیں گے۔ میں ہوں پارس مسرور اور آپ دیکھ رہے ہیں کوئی دیکھے نہ دیکھے، شبیر تو دیکھے گا۔ شبیر نے دیکھا کھانا کہاں سے آیا؟ جہاں سے بھی آیا، تم کھانے سے مطلب رکھو۔ بھابھی کے گھر گئی تھی نا، انہوں نے ہی دیا ہے۔ اور سنو، اگلے مہینے میرے چھوٹے بھائی کی شادی ہے۔ تو کا کیا مطلب ہے؟ تم پیسے دو گے تو میں بچیوں کے کپڑے بناؤں گی نا۔ ہاں یار رکھو پیسے، کوئی ایک آدھ اولاد ہوتی نا تو میں جھیل لیتا۔ 3 لڑکیاں پیدا کر دی ہیں تو نے، نہیں ہے میرے پاس پیسے، کپڑے بناؤں گی۔ اچھا تو پھر ایک کام کرو کہ ان تینوں کو جان سے ہی مار دو نا، جان ہی چھوٹ جائے گی تمہاری۔ چپ کر کے کھانا کھانے دے مجھے۔ ٹھیک ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ بیٹیاں جیسے میں نے اکیلی نے پیدا کی ہیں۔ ایک بات سن لے غور سے، اس بار مجھے لڑکا چاہیے، بیٹی نہیں ہونی چاہیے، سمجھ گئی نا؟ اچھا ٹھیک ہے بھائی، جو آپ کا حکم۔ میں تو آپ کی نوکرانی ہوں، تابع دار ہوں، آپ کی غلام ہوں، جیسا آپ کہیں گے ویسا ہوگا، ٹھیک ہے؟ توبہ توبہ، اتنی مرچیں ڈالتا ہوں کوئی؟ نہ تجھے کھانا بنانا آتا ہے نہ تیرے گھر والوں کو۔ اچھا اور کچھ؟ لے کے جا سر، نہیں کھانا لے کے جا۔ بڑا اپنی بیٹیوں کو بول دے چپ کر کے رہ، سونے جا رہا ہوں میں۔ رحیم یار خان کی آمنہ کی 15-16 برس پہلے والدین کی مرضی سے شادی ہوئی تھی۔ شوہر بیٹیوں کے خلاف تھا۔ 3 بیٹیوں تک تو اس نے کسی نہ کسی طرح برداشت کر لیا، لیکن 4تھی بیٹی کی پیدائش کے بعد معاملات خاصے بگڑ گئے تھے اور میاں بیوی میں مار پیٹ تک کی نوبت آ گئی تھی۔ شوہر نکٹھو قسم کا روایتی مرد تھا۔ سسرال والوں نے آمنہ کے شوہر کو رکشہ خرید کر دیا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ گھر پر خرچہ نہیں دیتا تھا۔ شوہر نے بیوی کو وارننگ دی ہوئی تھی کہ اگر 5ویں بیٹی پیدا ہوئی تو وہ اسے طلاق دے دے گا۔ ارے آمنہ کیوں رو رہی ہے؟ سارے شوہر ایسے ہی ہوتے ہیں، دیکھنا اللہ نے چاہا آپ کے بیٹا ہی ہوگا۔ شبیر نے دیکھا کہ آمنہ 5ویں بار امید سے تھی اور اپنی بھابھی کے سامنے بیٹھی رو رہی تھی۔ کیا بتاؤں بھابھی، مجھے بہت شرم آتی ہے آپ سے کسی بھی قسم کی مدد لیتے ہو۔ اگر میں کیا کروں مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا۔ ارے پاگل ہو گئی ہو،
ये तुम्हारा हक है। और हाँ चलो आज से पूछ लो अपने। और ये लो, ये तुम्हारे भाई देके गए थे और कह रहे थे कि अम्मा के इंतकाल के बाद आमना अब हमारी जिम्मेदारी है। और हाँ, किसी भी चीज की जरूरत हो तो बिना झिझक आ जाया करो, तुम्हारा अपना घर है और मैं हूं ना। भाभी बहुत बहुत शुक्रिया, अब मैं चलती हूँ। चलो बेटा। आमना ने भाभी की दी हुई रकम को बेदिली से कबूल किया, अपनी चादर दुरुस्त की और सलाम करके घर से बाहर निकल आई। उसकी छोटी बेटी उसके साथ थी। शब्बीर ने देखा कि दोनों माँ बेटियां काफी दूर पैदल चलने के बाद एक क्लिनिक में पहुंच गईं, जहां पहले से कुछ औरतें मौजूद थीं। आमना भी वहीं बैठ गई। ये आपको इमरजेंसी में दिखाना है? जी। अच्छा आइए आप मेरे साथ। नर्स ने आमना को तेजी से डॉक्टर से मिलवा दिया। लेडी डॉक्टर ने आमना का वजन किया और उसकी नब्ज चेक करने लगी। पल्स भी तुम्हारी लो साइड पे जा रही है, डाइट का ख्याल नहीं रख रही है, खाना पीना सही नहीं कर रही है। नहीं डॉक्टर साहिबा, मैं तो कुछ खा पी रही हूँ और दवाइयाँ भी टाइम से ले रही हूँ। क्या ले रही हो डाइट में? डाइट में फ्रूट्स वगैरह जो खाना पीना होता है नॉर्मली वो ले रही हूँ सब। मैं कुछ मेडिसिन लेकर दे रही हूँ, तुम्हें सही है? वो स्टार्ट करो, 1 वीक के बाद मुझे चेकअप करवाना है। नाम क्या है तुम्हारा? आमना। 1 वीक की मेडिसिन है, डाइट का अपना ख्याल रखो और ये मेडिसिन स्टार्ट करो। और बाकी अपना नाम लिखवा लो। नाम लिखवाया अपना तुमने? नहीं अभी नहीं लिखवाया। चलो नाम लिखवा लो काउंटर पे जाकर, फिर 1 वीक के बाद आके मुझे चेकअप करवाना है, ठीक है? ठीक है, आ जाओ। नहीं आमना के यहाँ डिलीवरी में कुछ ही वक्त रह गया था और उसके शौहर जैसे इंतजार में बैठा हुआ था कि उधर बेटी पैदा हो और इधर वो अपनी बीवी को तलाक दे दे। शब्बीर ने देखा कि आमना की बड़ी 15 साला बेटी वार्ड के बाहर बैठी हुई थी कि उसे एक नर्स ने आकर इत्तला दी। जी मैं उनके साथ हूँ। तो आप उनकी बेटी है? जी मैं उनकी बड़ी। अच्छा बहुत मुबारक हो, आपकी छोटी सी नन्ही सी बहन हुई है। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने देखा कि आमना की बड़ी 15 साला बेटी वार्ड के बाहर बैठी हुई थी कि उसे एक नर्स ने आकर इत्तला दी। जी मैं उनके साथ हूँ। तो आप उनकी बेटी है? जी मैं उनकी बड़ी। अच्छा बहुत मुबारक हो, आपकी छोटी सी नन्ही सी बहन हुई है। तो क्या मैं देख सकती हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, आइए। शब्बीर ने देखा कि बड़ी बेटी माँ के पास पहुंची और फिर नौमौलूद को गोद में लेकर प्यार करने लगी। माँ की आंखों से आंसू बह रहे थे। आमना के यहाँ 5वीं बेटी क्या पैदा हुई, उसे लगा कि वो बर्बाद हो गई है। हुआ भी यही कि शौहर बेटी की शक्ल तक देखने के लिए अस्पताल नहीं आया और जब आमना 5वीं बेटी के साथ घर पहुंची तो शौहर खामोशी से घर छोड़कर चला गया और फिर आमना को तलाक भिजवा दी। आमना के लिए ये बहुत कड़ा वक्त था। शब्बीर ने देखा कि उसकी सारी बेटियां उसके इर्द गिर्द मौजूद थी, उनकी आंखों में वीरानी थी। क्या हुआ अम्मी? डाके क्या देखे गए? अब्बू घर कब आएंगे? अब वो कभी नहीं आएंगे। तलाक दे दी उन्होंने मुझे। क्या बोल रही हैं आप? चले परेशान नहीं हो आप। पांच बच्चियों के साथ और किराए का घर, बच्चियों का स्कूल, छोटी बेटी सिर्फ 2 माह की। आमना एक बंद गली में खड़ी थी। फिर उसने मेहनत की, एक फैसला किया, बेटियों की परवरिश करने का अज़्म किया और घर के अखराजात चलाने के लिए बिरयानी की रेडी लगा ली। ये है आमना, एक बापर्दा खातून जिन्होंने हालात के आगे हार नहीं मानी। एक बापर्दा खातून के लिए सड़क पर खड़े होकर काम करना कोई आसान नहीं था। जैसा कि आप देख रहे हैं, आमना घर से बिरयानी की रेडी निकालकर शहर की तरफ जा रही है। रेडी धकेलने में बच्चियां भी मदद कर रही हैं। ये है वो मनाजिर।
आमना ने शौहर से तलाक के बाद एक काम और किया। अपनी एक बेटी को साइकिल चलाना सिखा दी और खुद भी मोटरसाइकिल चलाना सीख ली ताकि सौदा सल्फ लाने में आसानी हो। शब्बीर ने एक दिन देखा कि रेहड़ी पर शॉपर खत्म हो गए। आमना की बेटी फिजा भी वहीं मौजूद थी। शॉपर ही खत्म हो गए हमारे। फिजा, जाओ बेटा, ये पैसे लो और 100 रुपए के शॉपर ले आओ भाई। अच्छा, मैं लेके आओ, जल्दी से जाओ, जल्दी जाओ, ग्राहक आएंगे, मैं कहाँ से दूंगी। फिजा ने अपनी साइकिल संभाली और दुकान से शॉपर लेने चली गई। फिर एक दिन शब्बीर ने यह भी देखा कि खुद आमना अपना चेहरा ढांपकर मोटरसाइकिल चलाते हुए बाजार पहुंची, जरूरत का सामान लिया, घर वापस आई और किचन में बिरयानी तैयार करने लगी। आमना ने अपने अज़्म हौसले की दास्तान शब्बीर को कुछ इस तरह बताई थी। जब एक बेटी पैदा हुई तो थोड़ा झगड़ा था, दूसरी भी बेटी पैदा हुई, फिर तीसरी भी बेटी ही पैदा हुई। जब चौथी बेटी पैदा हुई तो घर में लड़ाई झगड़ा मार कुटाई बहुत ज्यादा ही हो गया था, इतना ज्यादा कि हद से भी ज्यादा हो गया था। पांचवी बेटी पैदा हुई तो उसने डिवोर्स दे दी। तो फिर मैंने अपना यही फैसला किया, मैंने अपने बच्चों का खुद अपनी बेटियों का पेट पाल सकूं। फिर मैंने बाहर और हिम्मत यही हौसला अफजाई की अपनी ऊपर, मैं अपनी बाहर करके रेडी ऐसा काम करूं जो ना मैं बच्चों का पेट पाल सके। शुक्र अल्लाह पाक का, मैं बच्चों के लिए कुछ अपना घर का गुजारा कर सकती हूँ। बिजली का बिल है, घर का खर्चा, बच्चे बीमार कोई बुखार तक हो जाता है तो मैं ना बहुत मुश्किल से एडजस्ट होता है। तो मैं यही कहती हूँ वज़ीर आला पंजाब से, फिर भी मुझे एक छत चाहिए जो अपने घर की, जो अपना घर हो। आमना की बेटी ने शब्बीर को बताया कि उसके बाप ने उसकी माँ के साथ कुछ अच्छा सलूक नहीं किया। मेरे ना पापा मुझे कहते थे ये ना बेटियां नहीं है, आप बेटियां भी क्या वो लड़के होते ना, वो कहते लड़का चाहिए, लड़का। 5 बेटियां 8 बजे जमा लेती हो, हर दिन तो तुम्हें बेटे होते बेटे। मेरी मम्मा मुझे खटले से उठ भी नहीं सकती थी, मम्मा कहते सौदा लेके आओ, मम्मा नहीं उठ सकती थी। फिर रात के कितने भी मारते, मार के मैंने एक तो खुद मैंने मम्मा को बहुत मारा। मम्मा फिर उठ नहीं सकती थी, अपना घर चाहिए, हम किराया नहीं हमसे भरा जाता। शब्बीर का कहना है कि बदकिस्मत है वो बाप जो बेटियों की परवरिश न कर सका। आमना को सिर्फ इसलिए तलाक दे दी कि उसके यहाँ बेटा पैदा नहीं हो रहा था। शब्बीर का कहना है कि सैलाब से तबाहाल लोगों की इमदाद के साथ साथ ऐसे लोगों की भी मदद करनी चाहिए जिन्हें गुर्बत, अफलास और जुल्म के सैलाब का सामना है। आमना अपनी 5 बच्चियों के साथ किराए के मकान में रहती है और आमदनी इंतहाई महदूद है। शब्बीर ने हुकूमत और फलाही इदारों से अपील की है कि आमना के लिए रिहाइश और मुस्तकिल मुलाजमत या वजीफे का बंदोबस्त किया जाए। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। कुलसूम और खादिम आपस में कजन थे और बचपन ही से एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन खानदानी तनाजात की वजह से उनकी आपस में शादी न हो सकी। वक्त गुजरता चला गया और जब एक लम्हे के लिए दोनों का आमना सामना हुआ तो जैसे वक्त रुक गया। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। 55 साला खादिम हुसैन कपास की फसल के दरमियान बिछी चारपाई पर बैठा कुछ हिसाब किताब कर रहा था। फिर वो फसलों का जायजा लेने के लिए क्यारियों में चलता दिखाई दिया। इतनी देर में उसके बेटे ने अपने बाप को देखा तो उसे आवाज देने लगा। अब्बा, अब्बा एक मिनट। अब्बा वो क्या कह रहे थे आप, किस हिसाब में गड़बड़ है? अरे हाँ बेटा, वो ये देख, ये आरती का हिसाब है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा, जरा देख। क्यों अब्बा, सुना सदा हो गया? अरे वाह बेटा, वाह बेटा, बस दुआ कर इस साल भी फसल अच्छी हो इंशाअल्लाह अब्बा। अरे हाँ वो बेटा, तुमने अपनी माँ को दवा दे दी थी? अब्बा आप जानते तो हैं वो कहाँ खाएंगी दवा। हाँ बड़ी जिद्दी औरत है। अरे वो तू अपने कुलसुम पप्पो के यहाँ गया था, सुना है बड़ी मारपीट होती है, उसका मियाँ मारता है उसको बहुत, और बच्चे भी सुना है नाकारा है। नहीं है बाप, उनके घर तो नहीं गया लेकिन उनके बच्चों से मुलाकात हुई थी। बहुत अच्छा काम कर रहे हो और अच्छा कमा रहे हो। हाँ,
वैसे बड़ी बदनसीब औरत है वो, अच्छी खासी लड़की थी। चलो अल्लाह खैर करे। अरे हाँ चल बेटा चल, तेरी माँ को दवा भी देनी है। बड़ी जिद्दी औरत है वो, पूरी रात खांसती रहती है, कहती है बस ठीक हो जाऊंगी ठीक हो जाऊंगी। कम होती है, और वैसे भी बेचारी वो बड़ी मजलूम औरत है। आई बड़ी मजलूम। एक तो तू पता नहीं कहां से बीच में आ गई। मैंने सुना है कि उसका शौहर उसको बड़ा मारता पीटता है और बच्चे भी उसका साथ नहीं देते। हाँ सुना तो मैंने भी यही है। मियाँ जी ये सब औरत की किस्मत से होता है। अरे चल चल इधर आ, बैठ। एक तो तू सुनती नहीं है ना, तुझे कब से कह रहा हूँ दवाई पी ले दवाई पी ले। आज कुछ भी हो जाए तुझे दवा में पिला के रहूंगा। सही से बैठ, आराम से बैठ, मैं लेके आता हूँ दवा भी। खादिम की बीवी ने अपने शौहर की तरफ प्यार से देखा और फिर उसके कहने पर दवा भी खा ली। खादिम हुसैन की अपनी कजन कुलसूम से शादी नहीं हो सकी थी, लेकिन 20-22 साल गुजरने के बावजूद खादिम के दिल में कुलसूम की कसक बाकी थी। दोनों की शादियां हो चुकी थीं, दोनों तरफ बेटे थे। खादिम अपनी बीवी का ख्याल रखता था, लेकिन एक दिन वो तवील बीमारी के बाद इंतकाल कर गई और खादिम हुसैन का जी चाहा कि किसी तरह कुलसूम को हासिल कर ले, लेकिन उसका शौहर जिंदा था और 2 जवान बेटे भी। एक ही रास्ता था, या तो कुलसूम का शौहर तबई मौत मर जाए या फिर कुलसूम को तलाक दे दे। खादिम के जहन में ये भी ख्याल पैदा हुआ कि कुलसूम के शौहर को ठिकाने भी लगाया जा सकता है। शब्बीर ने देखा कि कुलसूम अपने दोनों बेटों से कुछ बातचीत कर रही थी। अम्मा ये आपका चेहरा क्यों सुर्ख हो रहा है? तुम्हारे बाप ने मारा है। अरे तो आपने भी तो कुछ कहा होगा ना। हाँ हाँ फसाद की जड़ तो मैं ही हूँ। अरे 20 साल से तुम्हारे बाप की सख्तियां झेल रही हूँ, सिर्फ तुम दोनों की वजह से, वरना कब की घर से जा चुकी होती। अम्मा तुम दोनों की चिक चिक की वजह से ना हम दोनों की जिंदगी बर्बाद होकर रह गई है। भाई किस तरह बात कर रहे हो माँ से? कोई तरीका है बात करने का? देखो बड़ा बनने की कोशिश मत कर, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। फिर भी कोई तरीका होता है बात करने का, माँ है वो हमारी यार। अभी देख तूने चलना है तो चल मेरे साथ, वरना मैं जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ मैं भी इसके साथ। आप लोगों की ये चिक चिक कभी खत्म नहीं होगी, सारी जिंदगी रोते रहो यहाँ पे। हाँ हाँ जाओ तुम दोनों, और देखना मैं भी जन्नत में चली जाऊंगी, और खबरदार जो तुम दोनों मेरे पीछे आए। बेटे माँ से बदतमीजी करके चले गए थे कि इस दौरान कुलसूम का शौहर अपने काम से वापस आ गया। ये थोपड़ा क्यों सूझा हुआ है और कहाँ जाने का इरादा है? मुझसे पूछ रहे हो? तुम्हें नहीं मालूम रात को नशे में तुमने कितने थप्पड़ मारे? हाँ तो तूने भी कोई ऐसी वैसी हरकत करी होगी। अच्छा सुन, माफ कर देना। माफ कर दूं? मियाँ वो वक्त गुजर चुका है। अब अगर मुझे मौका मिला ना तो ऐसी जाऊंगी कि ढूंढते रह जाओगे तुम। मैं पूछ रहा हूँ ये तैयार होके कहाँ जा रही है? बड़ी अम्मी क्या फौजी में, अरे जनाजे में भी कोई नहीं गया था, पुरसे के लिए जा रही हूँ। अच्छा अच्छा, जहाँ जाना है जा, कम से कम 2-4 घंटे मुझे भी सुकून के मिलेंगे। कुलसूम 20-22 साल बाद अपनी बड़ी अम्मी के घर ताजियत के लिए गई।
دونوں خاندانوں کے براہ راست تعلقات تو ٹھیک نہیں تھے، لیکن خاندانی شادی بیاہ کے موقع پر کلثوم کی خادم سے ہلکی پھلکی ملاقات ضرور ہو جاتی تھی۔ خادم سے اس کی بیوی کے انتقال پر افسوس کے بعد جب وہ دونوں ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے تو اچانک کلثوم پھٹ پڑی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ شبیر نے دیکھا کہ کمرے میں خادم حسین، اس کا جوان بیٹا اور کلثوم ہاتھ اٹھا کر فاتح خوانی کر رہے تھے، جس کے بعد خادم نے اپنے بیٹے کو مخاطب کیا۔ ارے بیٹا جا، کلثوم آئیے، اس کے لیے چائے پانی کا بندوبست کر، بڑے عرصے کے بعد آئیے، اور یہ میری بڑی قریبی رشتہ دار ہے۔ جی ابا میں جانتا ہوں، ان کا بیٹا جلال میرا بہت اچھا دوست ہے اور میں ملتا رہتا ہوں اس سے۔ جی ڈرو بیٹا، کچھ مت لانا، بس میں 2-4 منٹ میں چلی جاؤں گی۔ پکی بات ہے نا پپو؟ ہاں، تکلف کی کوئی بات نہیں ہے۔ چلیں پھر آپ مجھے اجازت دیں، مجھے ذرا ضروری کام ہے۔ ابا پھر ان سے ملاقات ہوگی۔ بہت اچھا بچہ ہے تمہارا، اللہ میاں اس کو نظر بد سے بچائے۔ ہاں، اور کلثوم تم سناؤ، گھر میں سب خیریت ہے نا؟ ہاں سب ٹھیک ہے۔ ویسے تمہارے چہرے سے تو مجھے نہیں لگ رہا۔ اب ان باتوں سے کیا فائدہ، جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا۔ مجھے تمہاری بیوی کا بہت افسوس ہے، بہت شریف عورت تھی اور محبت کرنے والی۔ ہاں، اب تو وہ بھی نہیں رہی، تنہا ہو گیا ہوں میں، مگر ایک پل بھی تمہیں بھولا نہیں ہوں میں۔ اب ان باتوں سے کیا فائدہ؟ ارے تمہاری آنکھ میں آنسو، اپنے آپ کو تنہا مت سمجھنا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ آنسو پوچھو، اپنے آنسو پوچھو۔ کلثوم نے خادم کی طرف دیکھا اور رومال سے آنسو صاف کرنے لگی۔ پرانی محبت نے رنگ دکھا دیا تھا، خادم کی بیوی مر چکی تھی۔ خادم نے کلثوم سے شادی کا وعدہ کر کے کلثوم کا تنسیخ نکاح کروا دیا تھا۔ کلثوم کو دارالامان میں بھیج دیا گیا تھا۔ عدت ختم ہونے کے بعد خادم اور کلثوم نے نکاح کیا تو کلثوم کے جوان بیٹوں پر قیامت گزر گئی اور انہوں نے اپنی ماں کے دوسرے شوہر کو قتل کرنے کا نہ صرف منصوبہ بنایا بلکہ ایک دن موقع پا کر اسے قتل بھی کر دیا۔ پولیس نے مقتول کے بیٹے کی مدعیت میں کلثوم کے بیٹوں کے خلاف مقدمہ درج کر دیا تھا اور انہیں گرفتار بھی کر لیا تھا۔ پولیس نے اس واقعے کی جو تفصیل بتائی تھی وہ کچھ یوں ہے۔ چک نمبر 346 WB میں خادم حسین بلوچ کو محمد ہاشم اور محمد جلال نے ان پہ الزام ہے کہ انہوں نے اس کو قتل کر دیا، تو اس کو ٹوکے کا وار کر کے قتل کیا، تو ہم نے فوری طور پہ ان کا مقدمہ درج کیا، ریڈ کر کے دونوں ملزمان کو گرفتار کیا، اعلیٰ قتل برآمد کیا۔ تفتیش انشاءاللہ تفتیش جاری ہے۔ شبیر نے لودھرا کے نواحی علاقے 346 WB میں پیش آنے والے اس واقعے پر افسوس بھی کیا ہے اور اس کی مذمت بھی کی ہے۔ شبیر کا کہنا ہے کہ اس واقعے میں جو کچھ بھی ہوا وہ کہیں سے بھی نہ تو دھوکہ دہی ہے اور نہ بے وفائی والا معاملہ، بلکہ انسانی فطرت کے عین مطابق ہوا۔ کلثوم اپنے شوہر کے مبینہ مظالم برداشت کرتی رہی اور جب پانی حد سے زیادہ گزر گیا تو پرانی محبت نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ابھی وہ نئے سفر پر روانہ ہی ہوئی تھی کہ اسے ایک بار پھر تنہا کر دیا گیا۔ شبیر کا کہنا ہے کہ کلثوم کے بیٹوں جن پر مبینہ قتل کا الزام ہے ان کا رد عمل جذباتی اور فطری تھا، لیکن انتہائی قدم اٹھانے سے پہلے انہیں 10 بار سوچنا چاہیے تھا۔ بہرحال قتل تو قتل ہے اور اس کی سزا بھی مقرر ہے جو ملزمان کو ضرور ملنی چاہیے۔ دیکھتے رہیے، کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا۔ انسان غربت و افلاس کا شکار ہو اور اس پر بیماریاں بھی اسے گھیر لیں تو ایسے انسان کے لیے ایک ایک لمحہ بھاری ہو جاتا ہے۔ مڈ رانجھا کا رہائشی محمد بشیر اپنے خاندان کا واحد کفیل ہے۔ قومی رضاکار کی حیثیت سے ایک تھانے میں کام کرتا ہے اور اس کی تنخواہ فقط 6000 روپے ہے۔ 5 جوان بیٹیوں اور 2 بیٹوں کا یہ باپ گزشتہ 50 برس سے اللہ توکل پر زندگی کیسے گزار رہا ہے وہ آپ دیکھیں گے اس رپورٹ میں۔ میں ہوں پارس مسرور اور آپ دیکھ رہے ہیں کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا۔ یہ ہے محمد بشیر اور اس کا گھرانہ، اور یہ جو لوگ دکھائی دے رہے ہیں بشیر کی اولادیں ہیں۔
बशीर 1969 में बतौर कौमी रजाकार भर्ती हुआ था। अल्लाह ने उसे 5 बेटियों और 2 बेटों से नवाजा था, लेकिन जब उसके बच्चे 7-8 बरस की उम्र तक पहुंचे तो उन्हें बीमारी ने घेर लिया। मोहम्मद बशीर में इतनी सकत कहाँ थी कि वो बच्चों का इलाज करवा सकता। नतीजा ये निकला कि उसके बच्चे माजूर हो गए। 72-73 साल मेरी उम्र है जनाब, लिहाजा मैं मेहनत मजदूरी भी नहीं कर सकता। बच्चे माजूर नहीं सारे, लिहाजा मैं गवर्नमेंट अगे अपील करना जमीन को कौमी खजाने को इमदाद दी जाए। बशीर ने जैसे तैसे करके अपनी एक बेटी और बेटे की शादी कर दी थी, लेकिन उसकी दूसरी बेटियां अभी तक बाप के घर में बैठी थीं। एक तो गुर्बत व अफलास, उस पर माजूरी। ऐसे में बेटियों की शादी की आरजू एक दर्दनाक हसरत में तब्दील हो सकती है। शब्बीर ने देखा कि बशीर की जवान बेटियां माजूरी के बावजूद घर के कामकाज भी करती हैं। उनके चेहरों पर मायूसी और अफलास की गर्द जमी हुई है। एक 70 साल का बूढ़ा बाप उनके लिए कर भी क्या सकता है। असी बच्चियां इससे माजूर तरह बैठी हुई आबू दे बूहे ते लत्तां शत्तां से ही हो जान। कल नूं बंदा शादीशुदा कर सकदा, कोई ले सकदा है। हुण तो कोई बहन बिरा वाडी वाडी दिन ते खावी पीवी ता जितनी हो सकदी है अपनी इमदाद कर देवो। मोहम्मद बशीर रजाकार की ड्यूटी देने के बाद मेहनत मजदूरी के लिए भी जाता है और जो थोड़ा बहुत कमाता है उससे घर का जैसे तैसा खर्चा चला ही लेता है। शब्बीर ने मोहम्मद बशीर का घर देखा तो उसके कोने कोने से अफलास, बेबसी और गुर्बत का अक्स झलकता दिखाई दिया। आंगन में बगैर प्लास्टर की दीवारें, गुसल खाने पर दरवाजे के बजाय मैले कुचैले पर्दे, बोसीदा दरवाजे। जाहिर है कि महज 6000 रुपए की आमदनी ही क्या होती है। बशीर के बच्चे कई कई दिन फाकों से भी गुजारते हैं, लेकिन सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ते। जी ये गरीब बंदे हैं, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਤ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਮਾਈ ਸਾਡੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ। ਬਹਿਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਮਾਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਬਾ कितो नहीं रह गया। अगस्त का महीना तो बशीर पर कयामत बनकर गुजरा जब 1 जुलाई से पंजाब के तमाम कौमी रजाकारों को ड्यूटी से फारिग कर दिया गया। एक तो ये कि कौमी रजाकारों को तनख्वाह ही क्या मिलती है, महज 6000 रुपए। और अब जबकि इन कौमी रजाकारों को फारिग करने का नोटिफिकेशन आ गया है तो मोहम्मद बशीर किस एहसास महरूमी और बेबसी से गुजरता होगा, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। मोहम्मद बशीर सोचता है कि रजाकार तंजीम बाबा कौम कायदे आज़म ने बनाई थी, उसे अब भी अपनी वर्दी से कायदे आज़म की लाजवाल मोहब्बत की खुशबू आती है। शब्बीर के कहने पर मोहम्मद बशीर ने अपनी वर्दी पहनकर दिखाई तो लगा कि मोहम्मद बशीर लाजवाल खिदमत के जज्बे से सरशार रहा है, मगर अब तो वो अंदर से टूट फूट चुका है। अपनी बेटियों और बेटों की माजूरी देखते देखते बशीर की बीनाई भी मुतासिर हो चली है। हर हुकूमत दावा कर देंदी कि ਅਸੀਂ 10,000 बना रहे हैं, 20 बना रहे हैं, 8 बना रहे हैं। वायदा साढ़े नाल शुरू तो हो रहा है, लिहाजा हुण तक अमल दरामद नहीं होया और हुण गुजारा ही है भाई थोड़ी बारी किसी दुकानदार को बह रहा मजदूरी तो कोई 14 सूट दे के 150 ले लिया। इस तरीके मेरा जनाब कारगुजारी है और मेरा वसाइल कोई नहीं, ना मैं कोई कम कर सकता। शब्बीर ने जिस दिन से बशीर की माजूर औलादों को देखा है तो उसका दिल दुखा हुआ है। शब्बीर सोचता है कि अगर मोहम्मद बशीर साहिब हैसियत होता, उसकी बेटियों और बेटों की माजूरी का इलाज भी हो गया होता और उनकी शादियां भी हो चुकी होती। लिहाजा मैं बच्चे का इलाज कराया अलाइट अस्पताल में, काफी मेरा खर्चा हो गया जी। आज लाख 1.5 लाख रुपया जड़ा एक ही मरीज से खर्चा होना, लिहाजा मैं मोड़ो खर्चा बर्दाश्त न कर सके, जिसकी वजह से मेरे बच्चे माजूर रह गए। लिहाजा मेरिया बच्चियां जवान जड़ियां माजूरी की वजह तो घर बैठी, लिहाजा मेरे को वसाइल नहीं। मैं गवर्नमेंट अगे अपील करना कि इन्हों का इलाज मालचा कराया जाए गवर्नमेंट के खजाने से। इन मनाजिर को देखकर शायद ही कोई ऐसा हो जो इंसानियत के दर्द से तड़प न उठे। जरा देखिए बशीर के बच्चों को एक एक कदम उठाना भी किस कदर दुश्वार है। शब्बीर का कहना है कि अगरचे पूरा मुल्क सैलाब की तबाहकारियों का शिकार है, लेकिन उसके साथ साथ महंगाई और गुर्बत का सैलाब भी है। जो लोग मुंह जोर दरियाओं और सैलाबी रेलों से मुतासिर नहीं होते, वो गुर्बत और मुफलिसी के सैलाब में बह रहे हैं, मदद के लिए पुकार रहे हैं। उन्हें बचाना और उनकी बहाली हम सबका फर्ज है। शब्बीर को यकीन है कि मोहम्मद बशीर के हालात सामने के बाद बशीर की दस्तगीरी जरूर की जाएगी। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। यहाँ प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ।
अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे इसी वक्त सिर्फ एक्सप्रेस न्यूज पर। देखना मत भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिख कर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 021-3580-3820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेस वे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज, शब्बीर तो देखेगा।